सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। परम श्रद्धेय चेयरमैन मैनेजिंग कमेटी प्रोफेसर एस सुब्रमण्यम शर्मा जी, परम श्रद्धेय वाइस चांसलर श्री विजय कुमार जी, परम श्रद्धेय प्रोफेसर ललित कुमार साहू जी, all the dignitaries who have joined through the internet, dignitaries present in the audience, students, colleagues, dear friends. I, on behalf of the Mahavidyalaya and the chairman, welcome you to the two-day national seminar under the auspices of Central Sanskrit University, which is being led by the brilliant leadership of the Vice Chancellor, Professor Srinivas Varkhedi ji. The seminar, friends, is on the topic living tradition of scriptures. I'll take just 1 minute to share the feeling why this topic was chosen. It was just the other day when I was sitting with my chairman and we were discussing the dictum, Yat Pinde Tat Brahmande. Whatever there is in the universe is present in our human frame. So much is being done to develop the technology to know the Brahmanda, to know the botanical system, to know the zoological system, to know the astronomical system, to know human physiological system and whatnot. But there was a time when the Shastras, which now have become more or less words, they were not just words. They were the technologies. They contained the science, they contained the tantra. Every Shastra had a tantra, the technology to understand that. I remember on one occasion, Professor Hindu Kesri ji was in our college, the veteran grammarian, and he presented me a book called Tantra Pradeep. So I asked him that what takes you to the science of Tantra? He said, no, it's not Tantra. He said that every subject had a Tantra. And Tantra meant the technology how to study the Shastras so that the perfection can be achieved. See, the human frame is limitless like the universe, by the universe and the cosmos. So with this idea in mind, that let us re-study the Shastras in the light our chairman wants us to study, because he is a firm believer of the Indian knowledge system. And he promotes the study in Indian knowledge system. So we got encouraged. We took the proposal to him and he said that yes, we can go ahead with the seminar. And then we requested him that if we can have a veteran like Professor Sir Vijay Kumar ji. So he said that, okay. I said, I cannot even approach him. He is so big for us. So he said, okay. So I'll try to contact him. And we are fortunate that today Sir is with us. We are fortunate not only because he is here, he condescended to deliver the keynote address and to be our chief guest. We are equally grateful that he took all the pain to come down to Calcutta in this weather where all the flights are getting delayed. Yesterday his flight landed
at around 1:30 at night, and we can find him here this morning. Sir, we have no words to express our deep sense of gratitude, but our folded hands with Shraddha and our prostrated head with reverence will speak for itself, sir. Welcome you to the seminar, sir. We are equally thankful to Professor Lalit Kumar Sahu ji. He has been with us for a long time. He was in our managing committee for almost 2 or 3 sessions. And he always took the opportunity to take our case to the Rashtriya Sanskrit Sansthan. At that time, our chairman, sir, was the registrar of Sansthan. And so I can recall all those days. So I thought that it would be unwise if I will not pressurize Professor Sahu to come over. And I took this opportunity, and I almost, ignoring the weathers and ignoring all conditions, I requested him, so, sir, you please come. And he came, and I came to know that his entire family has come to Orissa for a get-together. But he, as he had made the commitment, so he is with us. We are equally thankful to all the dignitaries who have joined through internet. We have a long list, and you will be listening to them and their projections. We are thankful to one and all. Thank you, dear friends. Namo Buddhaya. Bhavatu Sabba Mangalam. धन्यवादः आचार्यः। स्वागतकर्तृभ्यो वयं स्वागतं कुर्मः। तत्रिदानीम् अस्माकं मध्ये कुञ्चिका भाषणनिमित्तं समुपस्थिताः सन्ति महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर विजय कुमार श्रीजी महाभागाः। तेषां चरणकमलयोः निवेदनं यत् कुञ्चिका भाषणमाध्यमेन अस्य चर्चासत्रस्य तत्र एकः प्रकाशः आभारतम् आविश्वं यथा गच्छेत्, सः भाषणः यथा आगच्छेत्, तदर्थं भवतां चरणयोः निवेदनम् आगच्छन्तु महाभागाः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुवेशम्। सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय द्वारा आयोजित एषा द्विदिवसात्मिका चर्चा संगोष्ठी अस्मिन् उद्घाटन सत्रे अतिमध्य विराजमानाः एतस्य महाविद्यालयस्य प्राचार्यः आदरणीयाः सोमेश्वर कुमार मिश्रा महोदयः, एतस्य महाविद्यालयस्य प्रबंध समितेः अध्यक्षाः अस्माकं मित्रमणिः आचार्यः सुब्रह्मण्य शर्मा महोदयः, एते आभासीय माध्यमेन अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। मंचे विराजमानाः अस्माकं मित्रम् आचार्यः ललितकुमार साहू महोदयः, एतस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः समन्वयकाः सुधाकर मिश्र महोदयाः,
एवम् उत्साहेन एतस्मिन् आयोजने सततं निरताः अस्माकं मित्रं शशिभूषण मिश्र महोदयाः, अन्येपि इतरे आचार्याः, अत्र विराजमानाः छात्राः, सर्वेभ्यः अभिनन्दनानि, नमस्कारः। अत्यन्तं सुन्दरं नृत्यं प्रस्तुतं भवद्भिः छात्रैः, आनन्दः जातः। स्वागतनृत्यम् अत्यन्तं मनोहरम् आसीत्, तदर्थं विशिष्टम् अभिनन्दनं, धन्यवादः च। शास्त्राणां जीवन्तपरम्परा ज्ञानं विज्ञानं च इति विषयम् अधिकृत्य दिनद्वयात्मिका गोष्ठी अस्ति। भारतस्य भिन्नभिन्नभागेभ्यः विद्वांसः अस्मिन् तेषां विचारान् उपस्थापयति। तत्र अहं दृष्टवान्, भारतस्य ज्ञानविज्ञानपरम्परायाः सर्वान् अंशान् स्वीकृत्य आचार्याणाम् उपस्थापनम् अत्र भवेत्। एकमपि शास्त्रं न त्यक्त्वा। सामान्यतः इदानीम् अहं कार्यक्रमस्य रूपरेखामपि दृष्टवान्। सामान्यतः सर्वेषु विषयेषु लिविंग ट्रेडिशन इति विषये उपस्थापनं भवेत्। तद् वस्तुतः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम्, आधुनिककालानुकूलः विषयः। कारणम् अस्माकं परम्परायाः यदि ज्ञानम् अस्माकं यदि नास्ति तर्हि वयं कथम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। कारणं ज्ञानपरम्परा का अस्ति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। कदाचित् तस्य एकवारं पुनस्मरणं करणीयं, चिन्तनं करणीयं। सा परम्परा कथम् अग्रे नेतव्या इति अस्माकं चिन्तनं भवेत्। तेन वस्तुतः भारतस्य या परम्परा भवति तस्य बीजरक्षणम् अस्माभिः क्रियते। तेन कारणेन एतस्याः चर्चागोष्ठ्याः इतरचर्चागोष्ठी अपेक्षया महत्त्वम् अधिकं वर्तते इति अहं भावयामि। मम सूचनानुसारं किञ्चित् अहं संस्कृतेन वदामि, किञ्चित् हिन्दीमाध्यमेन च वदामि अन्येषां सौकर्याय। तदा अहम् आगमनकाले एतान् आचार्यान् पृष्टवान्, कया भाषया मया वक्तव्यं। तर्हि महोदयः उक्तवान् मां, भवान् किञ्चित् मणिप्रवालशैल्या वदतु इति। दक्षिणे मणिप्रवालशैली इति अस्ति, भाषा संस्कृतयोगो मणिप्रवालः। तत्र मलयाळभाषा अस्ति। अहं मूलतः केरळीयः, परन्तु बहुभ्यः वर्षेभ्यः केरलं त्यक्त्वा इतरत्र भ्रमणं करोमि इति कृत्वा इदानीं केरळत्वं मयि तथा नास्ति, भारतीयत्वम् अधिकमस्ति। कारणं भिन्नभिन्नराज्येषु भिन्नभिन्नस्थानेषु एवं प्रवासः, निवासः, भोजनं, कार्यम् इति कृत्वा। सो भाषा संस्कृतयोगो मणिप्रवाल इव अत्र हिंदी संस्कृतयुक्त मणिप्रवालशैल्या किञ्चित् उपस्थापयामि। अत्र किञ्चित् अधिककालः तु किञ्चित् नास्ति। अहं कालानुसारं तद् वस्तुतः इदं सत्रं 12:30 पर्यन्तम् अस्ति इति मन्ये, परन्तु तदभ्यन्तरे उद्घाटनभाषणमस्ति मम। अनन्तरं विषयस्य वस्तुतः आरम्भः मया करणीयः, तदनन्तरम् अन्ये इतरे तस्मिन् विषये अग्रे गच्छेयुः। वस्तुतः भारतस्य या संस्कृति अस्ति ये बहुत एक चिरपुरातना एक संस्कृति है। उसमें ज्ञान और विज्ञान ये दोनों भी अत्यंत श्रद्धा से, अत्यंत युक्ति से चर्चा किया हुआ और डॉक्यूमेंटेड, अर्थात उसको एक रूप दृष्टि से लिखित रूप में किया हुआ एक परंपरा है। पहले मौखिक रूप में ये परंपरा शुरू हुआ, परंतु मौखिक रूप से होने के बाद
धीरे धीरे हमने हमारे चिंतन को हमने लिपिबद्ध किया, तो विश्व में सबसे पुराना जो लिपिबद्ध जो ज्ञान विज्ञान परंपरा कौन सा है पूछा, तो ये तो भारतीय परंपरा है करके हम बहुत अभिमान से हम बता सकते हैं। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया इसको कि परा विद्या और अपरा विद्या करके हमने दो कैटेगरी किया। ये दोनों ज्ञान और विज्ञान के विषय ही है कि लौकिक जीवन में अपने भौतिक विकास के दृष्टि से क्या क्या होना चाहिए और हमारे आध्यात्मिक विकास के दृष्टि से क्या क्या होना चाहिए, इसको कैसे बैलेंस करके हम एक अच्छे संस्कृति को आगे लेकर जा सकता है, यही हमारे परंपरा में अपने आचार्यों ने सोचा। क्योंकि हम सिर्फ भौतिक विकास के ओर अथवा सिर्फ आध्यात्मिक विकास के ओर विचार किया ऐसा नहीं है, हम परा और अपरा विद्या का जो समन्वय करके आगे जाने का विचार किया हुआ परंपरा है। इसलिए हमारे इधर जैसे ही वेद है, उपनिषद है और पुराण है और ऐसे जो आध्यात्मिक दृष्टि से चर्चा करने वालों के ग्रंथों के साथ साथ हमारे वैज्ञानिक परंपरा भी उतने ही महत्वपूर्ण स्थान में है। तो ये वैज्ञानिक परंपरा और ये एक आध्यात्मिक परंपरा, ये पूर्ण जो रूप है भारतीय ज्ञान परंपरा के दो साइड में, दो भाग के रूप में प्रचलित होते आए और ये बहुत सालों तक पूरे विश्व के लिए ये प्रकाश स्तंभ जैसे ये परंपरा आगे चली। तो उसमें वो परंपरा के बारे में हम जब बोलेंगे तो ये परंपरा मेरे दृष्टि से इसको तीन कालखंड में हम इसको विभक्त कर सकते हैं। मेरे को समय जब हो जाएगा तब थोड़ा बोल देगा, आप सूचना दीजिएगा, तब वहां आप जब बोलेंगे तब अपने टॉकिंग मशीन को बंद कर दूंगा, ठीक है। और क्या होता है, हम बोलने के बीच में समय देखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप बता दीजिएगा मेरे को, मैं आपके बाजू में ये ठप करके एक दे देना, समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये कालखंड जो रहता है, तो कालखंड के पहले मैं आपको एक बताने को चाहता हूं कि हमारे ज्ञान विज्ञान परंपरा को हम दो प्रकार में विभक्त कर सकते हैं। इसमें आगे चर्चा हो जाएगा। एक ऐसा है लिटररी परंपरा और दूसरा जो रहता है नॉन लिटररी परंपरा। तो नॉन लिटररी परंपरा में ये हो जाता है, एक दृष्टि से बताए तो लिखित रूप में, डॉक्यूमेंटेड लिखित रूप में, और एक मार्गी जो बोलते हैं क्लासिकल, जो इसमें जो आए हुए एक परंपरा जो रहता है। तो ये मुख्यतः दो भाग में इसको हम विभक्त कर सकते हैं, ये ज्ञान विज्ञान परंपरा को, एक लिटररी और दूसरा जो रहता है वो नॉन लिटररी करके है। ये क्या है, मैं थोड़ा विवरण करूंगा। लिटररी में जब आ जाएंगे तो ये लिटररी पार्ट जो रहता है, लिटररी पार्ट में दो प्रकार के जो होता है, उसको और भी सब डिवाइड हम कर सकते हैं। उसमें एक होता है सनातन धर्म के आधार पर जो चलने वाली एक परंपरा, तो सनातन धर्म, और दूसरा जो आता है अदर धार्मिक ट्रेडिशंस, इतर धार्मिक परंपरा। तो एक सनातन धर्म परंपरा, दूसरे जो है इतर धार्मिक परंपरा, ऐसे दो क्रमशः विकसित हुआ है हमारे इधर। तो इसमें हम थोड़ा अंदर जाते हैं, सनातन धर्म परंपरा के अंदर हम जाते हैं तो हम एक देख सकते हैं कि इसमें भी दो प्रकार के जो रहता है। एक तो कुछ कोर सब्जेक्ट्स जो रहता है और दूसरा जो रहता है अदर सब्जेक्ट्स रहता है। माने कोर सब्जेक्ट्स मतलब मुख्यतः ज्ञान आधारित विषय। माने कोर सब्जेक्ट्स में
ज्ञान आधारित विषय आता है। और इतर में अदर्स, इतर में टेक्नोलॉजी आधारित विषय आता है। इसको बोलते हैं हम, एक दृष्टि से बोला यही होता है, एक साइड में ज्ञान और दूसरे साइड में विज्ञान, ये ऐसे दो आ जाता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा, उसमें लिटररी, नॉन लिटररी, लिटररी के अंदर जब हम आ जाएंगे तब सनातन धर्म और इधर धार्मिक ट्रेडिशंस, इधर धार्मिक ट्रेडिशंस को हम बाजू में रखेंगे, हम चर्चा करेंगे उसके बारे में भी। तो ये विषय में जो कोर में आता है, ये तो आपने सुना है, ये तो हमें परिचित विषय है। इसमें चतुर्दश विद्यास्थान है, पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्दश। ये चतुर्दश विद्यास्थान ये कोर में आता है, अर्थात मूल विषय, ज्ञान ज्ञान का विषय होता है। और इसके अलावा माने चतुर्दश विद्यास्थान मुख्यतः इसमें चर्चा में आ जाता है। तो इसमें ऑलमोस्ट सभी प्रकार के दर्शन माने वेद हो गया, वेदांग हो गया, पुराण हो गया, और अपने दर्शन तक इसमें आ जाता है, धर्मशास्त्र ये सब उसमें आ जाता है। तो एक परंपरा ऐसे ही चलते आए हमारे। दूसरी परंपरा में आप देख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे ग्रंथ इस संदर्भ में भारत में हुआ है। बहुत सारे परंपरा में अपने अपने भारतीय ज्ञान पद्धति से इसके आधार पर ज्ञान बेस करते हुए विज्ञान की परंपरा भी आगे बढ़े। तो मैंने इसको पहले मैंने आपको बोला अदर्स करके बोला इतर। उसमें आप देख सकते हैं बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस इधर डेवलप हुआ है। अब विज्ञान की दृष्टि से देख लीजिएगा, बहुत सारे ग्रंथों का, संस्कृत ग्रंथों का तो उपलब्धि है हमारे पास, और उसके बारे में वो तो लंबा विषय है, मैं बता सकता हूं। बहुत सारे ग्रंथ है उसमें हुआ है, बेसिक साइंस से जुड़ा हुआ, अप्लाइड साइंस से जुड़ा हुआ। बेसिक साइंस माने अभी ऊर्जा तंत्र, भौतिक तंत्र है, अथवा रस तंत्र है, अथवा बहुत सारे विषयों के ऊपर अपने अलग अलग ग्रंथ है। और आगे जाकर हम देखते हैं इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, एल्केमी वगैरह वगैरह जो विषय होता है। इसमें भी इंजीनियरिंग में भी होता है हमारा निर्माण शास्त्र, हमारा वास्तुशास्त्र तो अच्छे रहे। वास्तुशास्त्र के इतने सारे ग्रंथ तो विश्व में इतने पुरातन इसमें लिखा हुआ, दुनिया में तो कहीं इतने ग्रंथ तो आपको नहीं मिल जाएगा। माने माया मदम से लेकर इधर से लेकर मनुष्यालय चंद्रिका तक का जो जितने बड़े जो एक परंपरा है हमारे। तो ये जो एक आता है आर्किटेक्चर है, एल्केमी है, इंजीनियरिंग में है, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी में है हमारा। और जैसे समरांगण सूत्र धारा इत्यादि ग्रंथ, भारद्वाज का इत्यादि अनेक अनेक ग्रंथ है इसमें हम देखते हैं। और वैसे ही हम देखते हैं तो ये साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, और हम आगे आ जाते हैं तो हमारा एक अद्भुत एक कंट्रीब्यूशन जो है हमारा है एस्थेटिक्स में, अलंकार शास्त्र में। अलंकार शास्त्र की भी एक परंपरा है, महत्वपूर्ण परंपरा है, भरत मुनि से लेकर रसगंगाधर तक का। मैं इतना ही बोलता हूँ, रसगंगाधर तक ही मैं बताता हूँ। मैंने जगन्नाथ पंडित के बाद फिर मैं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क डालता हूँ, क्योंकि जगन्नाथ पंडित के बाद फिर कौन, क्या कारण, क्या क्यों जगन्नाथ पंडित के बाद क्यों अलंकारिक नहीं हुआ? कारण है क्योंकि हमारे परंपरा वहां खंडित होते हुए हमें देख सकते हैं। हम उस विषय में चर्चा करेंगे। तो अलंकार शास्त्र के बात आ गया, एस्थेटिक्स आ गए, काव्य आ गए, और उसके बाद और अनेक प्रकार के कला, ये लिखित रूप में ये भी हम देख सकते हैं। माने इसमें आप मार्गी जो कला, जो संप्रदाय जो रहता है नाट्य शास्त्र से जुड़े हुए, अभी हमारे विद्यार्थियों ने तो इधर उपस्थापन किया। तो एक बेसिक टेक्नोलॉजी के साथ पूरे जो एक बोलते हैं ना क्लासिकल जो ये बोलते हैं, क्लासिकल को आप मार्गी बोलते हैं। तो ये तो एक परंपरा है। ये तो आप भरतनाट्यम तो इधर करो उधर करो कहीं भी करो तो उनका एक ही रहेगा, तो एक मार्ग है उसका। तो वैसे एक परंपरा हमारे आगे और फिर आगे आते जाते हैं
तो आप हेल्थ के दृष्टि से स्वास्थ्य के विषय में हमारी कल्पना, स्वास्थ्य के बारे में हमारे, तो हम भगवान पतंजलि से लेकर योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलम शरीरस्य तो वैद्यकेन योपाकरोक्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रायेण रक्षति। तो स्वास्थ्य के दृष्टि से भारत तो एक मॉडल है। इसलिए ही हमारे योगा को आज विश्व में एक्सेप्ट किया, विश्व में एक्सेप्ट करके 150 के ऊपर राष्ट्रों में आज योगा चल रहा है। हाँ, थोड़ा दुर्भाग्य ये रहता है, योगा को हमने संस्कृत पढ़ने वाले जो लोगों के हाथ से कहीं तो योगा तो स्किप हो गया। योगा प्रैक्टिस करने वाले, योगा करवाने वाले को संस्कृत आता नहीं है। ये था आयुर्वेद। ये कभी जो होता है, कभी कभी संस्कृतज्ञों के हाथ से संस्कृत संबंधी जो विषय होता है वो क्या हो जाता है, स्खलित हो गया। तो स्वाभाविक उसका एक व्यावसायीकरण हो जाता है। ठीक है, कैसे तो भी हो, तो कुछ न प्रकार में वो ये रहता है, क्योंकि योग दर्शन तो किसी को आता नहीं है तो भी हठ योग तो करते रहते हैं, जो विश्व में तो चलते रहते हैं, है ना। हाथ पैर हिलाने वाला जो योग है वो तो सभी जगह चलता है। आप कलकत्ता शहर से भी घूमा 15 जगह में आपको योगा सेंटर दिखेगा, परंतु उधर योग दर्शन तो नहीं होगा एनीवे, परंतु चलता है। तो आयुर्वेद में भी वही चलता है। आयुर्वेद वाले भी मूल ग्रंथ तो आयुर्वेद के जितने भी संस्कृत में है, परंतु कोई भी आयुर्वेद आधुनिक वैद्यों को संस्कृत का ABCD आता नहीं है। वो कब मैंने जनरल रूल बोला मैंने, अब होगा 1-2 जन होगा कहीं ना कहीं, वो तो भाग्य है, सौभाग्य है, परंतु जनरली नहीं होता है। क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे जितने भी आयुर्वेद आधुनिक वैद्य जो रहते हैं वो MBBS के मोह से ही परीक्षा लिखते हैं। उसमें नहीं मिलता है जो जिनको प्यार किया उसको शादी, उसके साथ शादी नहीं हुआ, फिर जिससे शादी किया उनसे पार करते एडजस्टमेंट जिंदगी चलाते जैसे। अभी बच्चों को अच्छा लगा। तो ये चलता है, परंतु हमारी परंपरा तो बहुत बढ़िया परंपरा आए थे उसमें कि स्वास्थ्य की दृष्टि से योग शास्त्र हो, आयुर्वेद हो। अरे आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य के लक्षण जब डिफाइन किया 3 बार चेंज किया उसको, 3 बार, क्योंकि पहले बोला शारीरिक स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य का लक्षण है, बाद में उन्होंने चेंज किया, नहीं केवल शरीर ही नहीं होगा, मन का स्वस्थता भी आवश्यक है। फिर बोला एक आत्मीय शांति भी आवश्यक है। तो फिजिकल वेलबीइंग इज नॉट द गुड हेल्थ, इसके साथ साथ आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मीय संतुलन होना चाहिए, वही अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है करके इन्होंने बोला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे 3 बार उनका ध्येय मोटो चेंज किया उन्होंने। ये तो अपने आचार्यों ने, सुश्रुत ने कितने सालों पहले ही बताकर रखा था। समदोष सुखम जो करके श्लोक है, प्रसिद्ध है। तो ये हमारी परंपरा देखा तो ये कोर के बाद विज्ञान की दृष्टि से ये भी चला। हेल्थ है, वेलनेस है, साइकोलॉजी है। अरे आजकल इतने साइकोलॉजी के जो बातें लोग करते हैं, हमारे इधर ये जो वाक्यपदीय कार्य जो रहता है भर्तृहरि के शतकत्रय है, इससे ज्यादा मनशास्त्र तो क्या होता है। तो नीति शतक है, स्वीकार शतक है, वैराग्य शतक है, सब है। ये तो मन को अच्छे रखने के लिए बताया, पर 2 रुपए 4 रुपए में मिलता है किताब। ऐसे मानसिक, शारीरिक, हेल्थ, वेलनेस और साइकोलॉजी इस दृष्टि से भी हमारी परंपरा, बहुत सारे ग्रंथ परंपरा और बहुत सारे परंपरा आगे चला है। और उसके बाद हम देख लेते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, इसके बारे में भी है। हमारे चाणक्य आदि लोगों ने अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों को लिखकर हमारे सामने रखा है कि कैसे अपने भारत के, कैसे हमारे पद्धति है, हमारे जीवन पद्धति कैसे होना चाहिए। और ये पद्धति को हमारे कवियों ने भी अपने काव्यों में भी लाने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र तो अलग हो गया और जीवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक है, नहीं, अपने कवियों ने भी किया। अभी कालिदास ने रघुवंशों के
अच्छे राजाओं का लक्षण कैसे बताए? रघुवंश राजाओं का जो वर्णन करते हैं तो उसमें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बोलते, अच्छे अच्छे राजा कैसे होना चाहिए ये बता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हो गया, कोड ऑफ लिविंग है, जीवन रीति, जीवन शैली अपना कैसे होना चाहिए, अपने कौटुंबिक संकल्प कैसे होना चाहिए, अपने समाज कैसे होना चाहिए, इसके बारे में सब बोला। इसलिए कालिदास ने अपने रघुवंश के शुरुआत में ही अपने दाम्पत्य संकल्प के बारे में वागर्थाविव स्मृतो वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ, इसमें तो ये कौटुंबिक संकल्प रखा, एक दंपति संकल्प रखा, दंपति कैसे होना चाहिए, वाग अर्थाविव संपृक्तौ करके बताया। वाक और अर्थ के जैसे इनसेपरेबल, अविभक्त। तो ये परंपरा हमारे आरंभ से बिफोर 3000 BC, वो पीछे कितने चला सकते हैं वो तो अपने अपने आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से बताया। कुछ लोग 5000 बोला, कुछ 8000 बोला, कुछ 10,000 बोला, तो पूरे जो परंपरा है। तो ऐसे ये सनातन धर्म की जो परंपरा है, ये एक दृष्टि से कोर सब्जेक्ट के रूप में और अदर करके जो निकला, ये पूरे परंपरा 1800 तक अपने भारत में उसके पूर्ण स्वरूप से पूर्ण विकास के द्वारा हम देख सकते हैं। एक पार्ट हो गया। कोर सब्जेक्ट्स में इसके साथ साथ ऐसा नहीं है भारत तो एकमुख चिंतन नहीं था हमारा, हम इतर धार्मिक परंपरा को ही मानते थे। ऐसा भी नहीं है कि वो एक ही परंपरा को मानेंगे, ऐसा नहीं। तो इसलिए अदर धार्मिक ट्रेडिशंस में भी इस तरह के विकास हुआ है। आप देख सकते हैं कि बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इस तरह के विषयों में नागार्जुन जैसे महत्वपूर्ण जो शास्त्रज्ञों का, वैज्ञानिकों की परंपरा है, उन्होंने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत में है। वो परंपरा जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में अभी भी सतत चलते रहते हैं। आज भी, आज के दिन में भी आप जैन मंदिरों में देख लीजिएगा, इतने ज्यादा लिखित ग्रंथों का संचय तो बाकी कहीं भी उतना मिलेगा, मुझे डाउटफुल रहता है। अभी भी जितने भी जो जैन मुनि लोग रहता है, जैन संत जो रहता है, वो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सतत लिखते रहते हैं, सतत उनके प्रकाशन चलते रहते हैं। मैंने जितने भी पहचान के जो परंपरा है, पूज्य परंपरा है, मैं बहुत सारे लोगों को पहचानता हूं, वो सतत ज्ञान क्षेत्र में काम करते ही रहते हैं। तो उनके भी वो दृष्टि है। तो बौद्ध धर्म के इसमें भी इस तरह की दृष्टि है। तो वैसे देखा तो ये कोर लिटरेचर जो है हमारा, ये कोर लिटरेचर इतना समृद्ध एक लिटरेचर एक तरफ बड़ा खड़ा है, और दूसरे साइड में दूसरे मैंने एक बार आपको बताया जब स्टार्ट किया तब, नॉन लिटरेरी जो परंपरा है, नॉन लिटरेरी में भी दो प्रकार के रहता है। ये तो संस्कृत मूल में आधारित है, संस्कृत हो सकता है, अभी वैदिक संस्कृत है, उसमें लौकिक संस्कृत है, और उसके अलावा थोड़ा पाली प्राकृत, ये सब जो भाषा में लिखित रूप में आता है। ये देखिएगा, ये भारत के इतने ही कितने समृद्ध है, आप देख लीजिएगा, उतना ही समृद्ध है अपने प्रादेशिक भाषाओं में भी अपने ज्ञान विज्ञान परंपरा डेवलप हुआ है। तो इसलिए मैं उस साहित्य परंपरा को बताने के लिए मैंने नॉन लिटरेरी शब्द का प्रयोग किया। तो नॉन लिटरेरी में भी दो प्रकार के जो विषय आता है, उसमें एक आता है रीजनल, अर्थात प्रादेशिक भाषाओं में, प्रादेशिक लिपियों में, प्रादेशिक रचनाएं बहुत सारे, उसमें भी काव्य है, साहित्य है, उसमें भी अलग अलग प्रकार के शास्त्र है, अलग अलग प्रकार के विज्ञान के दिया है, वेल्थ ऑफ रिलीजियस एंड अदर लिटरेचर इन ऑल मेजर इंडियन लैंग्वेजेस, सभी भाषाओं में आप देख सकते हैं। वो तो बताने को शुरू किया, तो एक्चुअली बोला तो एक एक भाषा में जो परंपरा है, इसके बारे में ही एक सप्ताहात्मक कार्यशाला रचना पड़ेगा, उतना बड़ा प्रपंच है। अब वो एक हो गया, और दूसरा जो होता है एक ओरल ट्रेडिशंस है। ओरल ट्रेडिशंस ऐसा रहता है, उसमें आर्ट फॉर्म से
माने फोक नृत्य है, फोक कला जो रहता है, फोक आर्ट्स, वो तो आप तो बंगाल के लोग हैं, ये तो बहुत बड़े कल्चरल हेरिटेज से संपन्न है। आपके रविंद्र संगीत से लेकर मौल संगीत के लेकर इतने बड़ी परंपरा, मुझे लग रहा है कि इधर के लोग इतने एतादृशी परंपरा अस्ति अत्र। और तो देशी मार्गी मैंने पहले बोला, तो वैसे देशी परंपरा है, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, तो जनरली ओरल ट्रेडिशंस में आता है। आप देख लीजिएगा, भारत में सभी प्रांतों में इस तरह के कुछ विज्ञान परंपरा चलते आ रहा है। कुछ वैदिकीय परंपरा है, कुछ गणित परंपरा है, कुछ निर्माण परंपरा है, वास्तुशास्त्र की परंपरा है। इसमें लोग बोलते हैं अरे ये संस्कृत और इस तरह के विषय तो एक विशिष्ट वर्ग की थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं केरल से हूं, केरल में वैद्य शास्त्र के जो परंपरा है वो कहीं भी कोई भी उच्च वर्गीय से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये परंपरा है, वैद्य शास्त्र की परंपरा है, वो पारिवारिक चलते रहते हैं। वास्तु परंपरा, वास्तु निर्माण शैली की जो परंपरा रहता है, कुछ कुछ विशिष्ट परिवारों में रहता है, वही परंपरा से आगे चलाते रहते हैं। कुछ कुछ निर्माण, कुछ कुछ सामग्री निर्माण की जो कला रहता है, तो उदाहरण के लिए दक्षिण केरल में, साहू जी तो कुछ साल केरल में रहा तो पता होगा, तो दक्षिण केरल में एक मिरर मिलता है, दर्पण, उसका नाम है आरनमुला कन्नाडी बोलते हैं। कन्नाडी माने मलयालम में दर्पण, आरनमुला माने एक प्रदेश का नाम है। तो आरनमुला कन्नाडी इज अ फेमस थिंग। तद वस्तुतः लोह निर्मित दर्पणमस्ति, अलॉयड। तद अलॉयड मिश्रणं सर्वे न जानन्ति, तदेक परिवारः केचन जनाः जानन्ति। तद ओरिजिनल दर्पणम् अपेक्षया अपि सुन्दरं भवति, लोह निर्मितं, बहु फेमस् अस्ति। तर्हि तादृश कलाकृति एतत् परम्परया चलति, तदेव फोक आर्ट्स् इति। तत्र प्रादेशिकरीत्या विकसित भिन्न भिन्न विषयाः भवन्ति। तद् कुत्रचित् औषधमस्ति, यदा यदा कुत्रचित् एवं भवति, यदा भवतां जाण्डिस् इत्यादि रोगाः भवन्ति चेत् कुत्रचित् परिवाराः भवन्ति, तस्य कृते औषधं ददाति। तस्य इन्ग्रीडियण्ट् किमपि ते न वदन्ति, केवलम् औषधं ददाति, रोगमुक्तिः भवति। सर्वत्र करणीयम् इति न वदामि अहं, परन्तु केषाञ्चन रोगाणाम् एवम् अस्ति। एवं भिन्न भिन्न प्रकारस्य विषयाः तत्र भवन्ति, आर्ट् फॉर्म्स्। हेल्थ संबंधी विषयाः, केरले महती परंपरा अस्ति, कलरी परंपरा। कलरी परंपरा इति हेल्थ दृष्ट्या आयोधनं भवति, आयोधन परंपरा स्वास्थ्य रक्षणस्य कृते भिन्न भिन्न राज्येषु भिन्न भिन्न प्रकारस्य भवति। तत् स्वास्थ्य दृष्ट्या स्वास्थ्य रक्षणम् इति विषये। फूड एंड लाइफ, प्रादेशिक प्रदेश भेदानुसारं भोजन परंपरा अस्ति। भोजन कुतूहलम् इति ग्रन्थं लिखितवन्तः वयम्। अस्माकं भोजन चतुष्षष्टि कलासु किं शास्त्रं नास्ति, किं ज्ञानं नास्ति, भवन्तः वदन्तु। सर्वविध विषयाणां तत्र अस्ति। पाकः अपि काचन कला अस्ति, तस्मिन् विषये अपि ग्रन्थाः सन्ति। तर्हि तत्र फूड एंड लाइफ इति एकः विषयः, लाइफ प्रैक्टिसेस, भोजन अनन्तरं जीवनशैली, जीवनशैली अनुसारं कथं भोजनादिकं भवति इति। अनन्तरं फोक्लोर इति भवति, प्रादेशिककलाः, फोक आर्ट्स् भवति, फोक्लोर भवति। तर्हि एवं वयं पश्यामः चेत् भारतस्य ज्ञानपरम्परा, भारतस्य विज्ञानपरम्परा इति वयम् एक अम्ब्रेला, यदा एक छत्रस्य अधः वयं पश्यामः चेत् एतादृशरूपेण विकसिता परंपरा अस्ति एषा। एतस्याः परंपरायाः वयं किञ्चित् अग्रे गत्वा पश्यामः। अहम् एतस्य पूर्णविवरणं न करिष्यामि, कारणं तदिदानीं तादृश समयः नास्ति, परन्तु वयम् एतस्य कालघण्टानुसारं वयम् एकवारं पश्यामः, एषा परंपरा कथं विकसिता। वयं पश्यामः चेत् कालघण्टत्रयं वयं पश्यामः।
तीन कालखंड को इसको हम कालखंड में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसा है कि बिफोर 3000 BC, माने बिफोर करंट इरा BCE इति कथयति। तो उस कालखंड में वेद और पुराण और महाभारत और रामायण यही तक की जो परंपरा है 3000 BC तक, ये एक कालखंड है। तो इसमें रामायण महाभारत तक की रचना कालखंड है। और हम आगे जाते हैं तो 3000 से 500 CE अर्थात 3000 BC से 500 AD तक जो कालखंड है, ये तो बहुत अच्छे समृद्ध एक कालखंड से हम आए, क्योंकि हमारे ज्ञान के, हमारे दृष्टि, हमारे संस्कृति कैसे होना चाहिए करके बेस निर्माण 3000 तक हो जाता है। उसके आधार पर उसमें दिखाया हुआ झलक को लेकर विज्ञान के क्षेत्र में हमारे जो काम होना शुरू हो गया, एक दृष्टि से बताए तो। अब देख लीजिएगा वेदांग ज्योतिष, स्मृति ग्रंथों का मनुस्मृति इत्यादि, शुल्ब सूत्र, सुश्रुत संहिता, अष्टाध्यायी, निरुक्त। आप देख लीजिए, हम सोच सकते हैं क्या एक डिक्शनरी काव्य में लिखना। आपको मैंने एक बात बताता हूं, आधुनिक साइंस में ये मस्तिष्क के बारे में बताते हैं कि मस्तिष्क के दो साइड रहता है। एक साइड जो रहता है वो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे वैज्ञानिक भाग को वो डेवलप जिसका होता है, उनका वैज्ञानिक ध्यान, वैज्ञानिक विषयों में उनका डेवलपमेंट ज्यादा होता है। दूसरा एक पार्ट रहता है वो कला से जुड़ा हुआ रहता है, माने आर्ट्स। तो ये जब डेवलप हो जाता है वो अच्छे अभिनेता हो सकता है, अच्छे गायक हो सकता है, संगीत साहित्य आदि अलग अलग काव्य इत्यादि विषयों में वो हो जाता है। तो ऐसे एक विचार है, बोलते हैं आधुनिक साइंस बोलते हैं। हमारी परंपरा आप देख लीजिएगा, हमारे परंपरा ये दोनों को जुड़ाया हुआ परंपरा है। हमारे जितने भी वैज्ञानिक ग्रंथ है सब काव्य है। ऐसा नहीं है कि हमारे वैज्ञानिक साइंटिफिक लिटरेचर काव्य नहीं है करके नहीं है। जितने भी हमारे साइंटिफिक लिटरेचर है सब काव्य में लिखा गया है, अलंकार से जुड़ा हुआ है, छंद से जुड़ा हुआ है। अब कितने भी देख लीजिएगा, अब बृहत्सार देख लीजिएगा, कोई भी ग्रंथ देख लीजिएगा, सभी में यही। वही मैं बोला, इसका मैक्सिमम में आप जाते ये देख सकते हैं, हम डिक्शनरी भी काव्य में लिखा हुआ लोग है। तो आप अमरकोश देख लीजिएगा, अमरकोश तो कोशक ग्रंथ है और स्वरूप क्या है, काव्य है। कोई डिक्शनरी काव्य में लिखने के बारे में कौन सोच सकता है? तो हमने सोचा, परंपरा है हमारी। तो इसलिए मैं बोला वो जो नेक्स्ट जो ब्रिटिश टेक्स्ट है, न्याय वैशेषिक है, जैन मैथमेटिकल वर्क्स आया, अर्थशास्त्र आ गया, छंद शास्त्र आ गया, योग सूत्र, काम सूत्र, महाभाष्य, रसरत्नाकर, चरक संहिता, सांख्य, अमरकोश, सूर्य सिद्धांत, बृहत संहिता वगैरह, ये सब जो ट्रेडिशंस आप देख सकते हैं, ये सब 500 BC तक हुआ, AD तक हुआ है। 3000 से 500 BC तक, AD तक हुआ। और उसके बाद भी 500 AD अथवा करंट एरा से लेकर 1800 तक, करंट एरा तक, और भी इसको आगे भी डेवलपमेंट हुआ है। जैसे आर्यभट्ट वगैरह जो हुआ है, आर्यभट्ट हुआ है, पंच सिद्धांतिका, मय मतम, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, मानसारा इत्यादि इत्यादि शास्त्र, गणित सार संग्रह, सिद्धांत शेखर इत्यादि वह पश्यामः। तो मैं देख रहा था कि ये भी रहता है कि कुछ जैसे काश्यप शिल्प सूत्र है, केरला में केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स करके, केरल तो गणित के बारे में बहुत प्रसिद्ध है। संगम ग्राम माधव करके एक विशिष्ट व्यक्ति रहे, और माधव आचार्य जैसे लोग हैं। ये तो केरल के बहुत गणित शास्त्र परंपरा, ये सब उसी कालखंड में जो हुआ है 1800 तक का। सिद्धांत शिरोमणि है, अष्टांग हृदय है, रसरत्न समुच्चय है, ग्रह लाघव है, ये सब देखा तो ये सब आ जाता है 1800 तक। साहित्य के हम संस्कृत साहित्य के जुड़े हुए छात्र हैं करके मैं ये भी उल्लेख करने को चाहता हूँ, रसगंगाधरकार भी वहां तक आ गया।
माने 1500 में आपके दुनिया लोग वगैरह जो हुआ है, दुनिया लोग वगैरह होने के बाद माने साहित्य शाखा में देखे तो रसगंगाधर तक आ गया। 1800 के बाद ये परंपरा क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है तब भारत के इतिहास जो रहता है, भारत के इतिहास में इतने बड़े आक्रमण हुआ, इतने बड़े इन्वेशन हुआ, इतने लोगों का आक्रमण होने के वजह से हमारे जो पारंपरिक अध्ययन अध्यापन जो परंपरा है ये पूर्ण रूप से खंडित हो गया। खंडित होने की वजह से संस्कृत को अध्ययन अध्यापन परंपरा से अलग करने की वजह से संस्कृत के लिखा हुआ जो ग्रंथों के ऊपर फिर अध्ययन अध्यापन ये सब थोड़ा रुक गया। अनन्तरं एषा परंपरा गत 300 वर्षेभ्यः 200 वर्षेभ्यः एषा परंपरा कुत्रचित् अल्परूपेण रक्षिता, परन्तु मुख्य एजुकेशन सिस्टम तः एषा परंपरा निर्गता। तस्मिन् स्थाने अन्येषां नामानि आगतानि। वैज्ञानिक क्षेत्रे ज्ञानक्षेत्रे भारतीयाः बहिष्कृताः, भारतीय ज्ञान परंपरा खंडिता। तेन कारणेन किम् इदानीम् अस्माभिः तस्मिन् विषये बहु बलेन एतत् सर्वम् आनेतव्यं भवति। तेन कारणेन इदानीं लिविंग ट्रेडिशन्स् एतस्मिन् विषये अस्माभिः चर्चा करणीया भवति। एक दौर्भाग्यस्य विषयम् अहं भवतः पुरतः वदामि। मम समयः समाप्तः इति मन्ये। एक 5 निमेषे अहं समापयामि। एकं भवतां पुरतः किञ्चित् उदाहरणद्वयम् अहं स्थापयामि। अहं यदा महोदयः उक्तवान्, अहं पूर्वं नागपुरे महाराष्ट्रे कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालये प्राध्यापकः आसीत्। उस समय में हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपने सुना होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस में उस बार 1914 आई थिंक सो 13 या 14 में मुंबई यूनिवर्सिटी में इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ, इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ। वो विज्ञान के क्षेत्र के बहुत बड़े उत्सव होता है, इसमें बहुत बड़ा संशोधन और प्रेजेंटेशन ये सब होता है। तो उस समय हमने थोड़ा प्रयास करके हमने उसमें एक सेशन रखा ऐसा है कि साइंटिफिक लिटरेचर, साइंटिफिक थिंकिंग इन संस्कृत लिटरेचर, भारत से वैज्ञानिक परंपरा इन संस्कृत वैज्ञानिक परंपरा करके उसमें एक सेमिनार ये रखा। तो उस समय अभी शिक्षा मंत्रालय है, तब तो ह्यूमन रिसोर्सेस मिनिस्ट्री इति था, मानव विभव विकास मंत्रालयः। प्रकाश जावडेकर इति मन्त्री आसीत् केन्द्रे। तस्यापि इच्छा आसीत् इति कृत्वा तत् योजितं। तत्र यदा कार्यक्रमस्य ब्रोशर् निर्गतं तत्र वयं भिन्न विषयान् स्थापितवन्तः। यदा भारतीय संस्कृत साहित्ये वैमानिक शास्त्रं, भारतीय साहित्ये गृहनिर्माणस्य शास्त्रं, वास्तु, नगरकल्पना, भिन्न हेल्थ इत्यादि इत्यादि विषयाः तत्र स्थापिताः। एतेषु विषयेषु संस्कृते ग्रन्थाः सन्ति इति नात्र संशयः। परन्तु यदा ब्रोशर् तस्य निर्गतं, तस्य चर्चा आरब्धा, समग्रे भारते एतस्य विरुद्ध चर्चा आरब्धा। किम् इदानीं नेशनल साइंस कांग्रेस को भगवाकरण कर रहे हैं। संस्कृत बोला तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि यह तो कोई विशिष्ट कुछ होता है, इसको थोड़ा सेकुलर है ही नहीं है। संस्कृत तो नॉन सेकुलर है। संस्कृत के 5% वाला जो कर्मकांड को लेकर इतने बोलते हैं कि 95% वाला साइंस एंड लिटरेचर और ये सब जो वाला विषय के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करते। 95%। आप देख लीजिए कर्मकांड और उससे संबंधित लिटरेचर कितना है संस्कृत में, मैक्सिमम 5%। बाकी 95% किमस्ति इतर विषयाः, सेकुलर विषयाः, विश्वस्य अपेक्षिताः विषयाः। तान् विषयान् विस्मृत्य केवलं 5% कारणं वयं संस्कृतं तत्रैव शृणुमः, मंदिरेषु पूजा पाठादिषु इतरत्र नास्ति, और मुख्य धारा अध्ययन से संस्कृत तो निकल गया। इतना कोलाहल हुआ पूरा भारतवर्ष में, टीवी चर्चा ये वो सब, और ये चर्चा करने वाले कौन है? इसमें कोई संस्कृत पढ़े हुए लोग नहीं है, ये सब सेकेंडरी नॉलेज वाले हैं। किसी के मुंह से कुछ तो सुना है, बायस्ड और ओरिएंटेड, अर्थात इसमें थोड़ा प्रायोगिक तत्व भी होता है।
प्रायोगिक कार्यक्रम भी होता है इसमें, क्योंकि ये भारत की संस्कृति को आगे लेकर आना नहीं है ऐसे विचार करने वाले, ये ट्रेडिशंस को कैसे तो भी इसका सर्वनाश करना है, ऐसे बायस लोग इसमें चर्चा में आ गए। ये 2014 की बात है, तो 10 साल हो गया संस्कृत का और भी अच्छे जागरण हो गया भारत में, मैं ऐसे सोच रहा हूं। 10 साल होने के बाद 2023 में मैंने महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय में जब वाइस चांसलर करके आया, तो मैंने लास्ट ईयर में आपने भी कई यूट्यूब में आप देख सकते हैं, एक ISRO चेयरमैन का एक टॉक है, सोमनाथ जी, डॉक्टर सोमनाथ, ये नाम तो आज सुपरिचित नाम है, वो हमारे थोड़ा भाग्य से केरल से है, हमारा पहचान के भी है। तो मैंने सोचा ये संस्कृत जो विषय ऐसा होता है, संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिर्फ व्याकरण और काव्य की नहीं है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है करके मैं बोला तो कोई मानेंगे नहीं, क्योंकि वो तो संस्कृत के प्राध्यापक हूं मैं बोला तो उसका वैलिडिटी कितना रहता है। तो मैंने सोचा संस्कृतम विज्ञान से भाषा, इस दृष्टि से कोई अच्छे बोलने वाले ऐसे कोई व्यक्ति मुझे चाहिए, तो मैंने ISRO चेयरमैन से कांटेक्ट किया। तो मेरे पिछले बार के महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारंभ में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सोमनाथ जी आए। उन्होंने बताया, मेरे प्रोग्राम में बताया कि भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के मूल चिंतन भारत के वेदों में है, भारत के वेद शास्त्र परंपरा में भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में हमने चर्चा किया है। सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों ने मेरे लिए प्रेरणादायक है मैं आज काम करने के लिए वगैरह, उन्होंने बोला, अनेक उदाहरणों के साथ उनका बहुत बढ़िया 45 मिनट के दीक्षांत भाषण हुआ। भाषण होने के बाद में क्या बताऊं आपको, आप अभी भी YouTube में देख लीजिएगा, इसका इतना विरोध, इतना विरुद्ध जो है प्रचार इतना चलता है कि सभी प्रादेशिक भाषाओं के पेपर में, सभी टीवी में, सभी YouTube चैनल्स में, सभी जगह इतना विरोध जो लोग कर रहे हैं कि ये तो क्या करने वाले हैं, ये तो क्या रॉकेट आगे गोमूत्र से रॉकेट चलाएंगे क्या, ये इस तरह के भी कमेंट्स, इतना अगली कमेंट्स आ रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये कोई अभारतीय नहीं कर रहे हैं, ये सब भारतीय कर रहे हैं। तो हमारे ऐसे भारतीय शरीर रहते हुए अभारतीय मानसिक वाले लोग जो रहता है, वैदेशिक संस्कृति से अथवा पूर्वाग्रह से पीड़ित अभारतीय मन वाले भारतीय संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात करते आ रहा है। यही सबसे बड़ा हमारे आज के दिन में सबसे बड़ा दुखद बात ये होता है, हमारे दुश्मन तो हम ही है, वयमेव अस्माकं शत्रवः अन्येन इतरे तु संस्कृतं पठन्ति, इतरे तु संस्कृतस्य उत्तम कार्याणि कुर्वन्ति विदेशेषु, अमेरिकादि राष्ट्रेषु संस्कृतस्य उत्तमं कार्यं चलति, संस्कृत पठनं चलति, संस्कृतेन सम्भाषणं चलति। 2019 मध्ये अहम् एकमासं यावत् अर्ध अमेरिका प्रवासं कृत्वा आगतवान्। मया एकवारमपि कस्मिन्नपि परिवारे इतरभाषया भाषणं करणीयमेव नाभवत्। सर्वे परिवाराः संस्कृतं पूर्णरूपेण जानन्ति, वदन्ति। अब देख लीजिए, मैं तो कभी मैं सोचा मैं न्यूयॉर्क में उतरकर वापस पूरे घूमकर न्यूयॉर्क तक आने में मुझे कभी कहीं दुकान में कुछ बताना है तो मुझे, अदरवाइज मैं जहां जहां रहा कहीं भी मुझे इधर भाषा में बात करने का मौका ही नहीं हुआ, मैं तो संस्कृत में ही बात कर रहा था। तो पूरे परिवार, बीवी बच्चे, इधर तो संस्कृत प्राध्यापक के घर में भी अगर संस्कृत प्राध्यापक संस्कृत में बात करते हैं तो उनकी बीवी आश्चर्य से उनको देखेंगे कि ये कौन सा भाषा में बात कर रहे हैं। और ऐसे बोलने वाले लोगों को मैं देखा हूं। अरे इनको, ये क्या हुआ, मेरा ज्यादा हो गया क्या आवाज, माइक की स्वयं ऑफ हो गया। तो ऐसा है कि एक ऐसे प्राध्यापक की श्रीमती बोली, मुझे अभी पता चला मेरे पति को संस्कृत बोलना आता है करके। तो ये परिस्थिति है हमारे इधर। तो भारत के बाहर इस तरह के जो संस्कृत अभियान जो चल रहा है, क्या हमें नहीं करना है क्या? हमें इस परंपरा को लाइव रखना नहीं है क्या? ये परंपरा को जीवंत रखना है ना। इतने बड़े जो हमारी परंपरा में आपके सामने रखा, और इसके अंतर्गत एक विषय को लेकर हम चर्चा करते हैं तो आपको कितने दिन के जो चर्चा के विषय हो जाता है ये परंपरा के। तो हम कितने भाग्यवान लोग हैं, हम ऐसे परंपरा में
इस परंपरा के इस तरफ हम पैदा है और हमें भी कुछ पढ़ने का मौका मिला है। तो हम ये इसके बारे में अभिमान से हम इसका चर्चा करेंगे और ये परंपरा को जीवंत रखने के लिए हम कोशिश करें। और हमारे परंपरा कैसे आज कैसे चल रहा है, ये 2 दिवस के जो विशिष्ट ये गोष्ठी में आदरणीय विद्वान लोगों ने आपके सामने उपस्थापन करेंगे। केवलम उपस्थापनम श्रवणम नास्ति, अस्माभिः श्रोतव्यम, अस्माभिः किंचित् अग्रे करणीयम, तदर्थम अस्माकं मनसिद्धता करणीया इति अत्यन्तं महत्वपूर्णः विषयः। एतावत् मामत्र भवन्तः आहूतवन्तः। धन्यवादाः। पुनरपि कदाचित् मेलनार्थं भगवतः कृपा भवतु। भवतां सर्वेषां कालाधिकालस्य महाकालस्य अनुग्रहः भवतु इति प्रार्थनया सह अहं समापयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। आपके व्याख्यान से सर हम लोग एकदम उपकृत हैं और एक परंपरा हर जगह, हर व्यक्ति में, हर परिवार में व्याप्त है, उसको जागृत रखने की हम लोगों की जिम्मेदारी है। आचार्य ने इस तरह निर्देश किया। काल को देखते हुए हम लोगों के मध्य में उपस्थित अस्माकं तत्र प्रबंधन समितेः अध्यक्षाः उपस्थिताः सन्ति। तेषां कृते तत्र निवेदनं ते स्वकीयैः आशीर्वचोभिः अस्मान् आभाषी पटल माध्यमेन सनाथयन्तु प्रोफेसर सर महाभागाः। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वेभ्यः प्रणामाः। परम श्रद्धेयाः महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कौलपत्यं निर्वहन्तः आचार्याः विजयकुमार महोदयाः, महाविद्यालयस्य प्रांशुपालाः, अस्माकं मित्रमणयः सोमेश कुमार मिश्रा महोदयाः, पुनरद्य मंचे समुपस्थिताः अस्माकं पूर्वं गुरुवायूर परिसरे निदेशकरूपेण कार्यं कृत्वा इदानीं ओरिस्सा देशं प्राप्तवन्तः ललित कुमार साहू महोदयाः, अद्यतन कार्यक्रमस्य मुख्य संयोजकाः सुधाकर मिश्रा महोदयाः, अत्र समुपस्थिताः सम्मिलिताः अध्यापक बान्धवाः, पुनश्च प्रयांसः छात्राः छात्रेश्च। वस्तुतः एकं वाक्यम् इदानीं स्मरामि, अन्यथा चिन्तितं कार्यं दैवम् अन्यत्र चिन्तयेत् अथवा कल्पयेत् इति। मया स्वप्नः दृष्टः। Actually, I was dreaming. एकं दिनं विजय कुमार महोदय द्वारा आगमन संदर्भे कोलकाता नगर्याम् उषित्वा तैर्साकं महाविद्यालयं गत्वा तेषां समक्षम् एतत् सर्वं अवलोकयितुं मम अवसरः लब्धः इति स्वप्नः दृष्टः। किन्तु दैवनिश्चयः अन्यथा आसीत्। साम्प्रतमहं केरले अस्मि, ते तु वेस्ट बेंगाल देशे, तैरेव कथितं पूर्वं केरलीयः आसीत्, इदानीं भारतीयः जातः इति। उत्तमं। सर्वेषां कृते इदानीं विजयकुमारः इत्यत्र विजय शब्दः अस्ति, ते इदानीं दिग्विजये सन्ति, दिग्विजय यात्रायाम् अस्ति। किमर्थं दिग्विजयः? संस्कृतस्य विजयः। तदर्थं एतेषां सततम् उद्यमः, प्रवृत्तिः। तस्मात्
तादृग्विधाः आचार्याः अस्माकं महाविद्यालयम् आगत्य व्याकरण साहित्य दर्शन ज्योतिष आयुर्वेद शास्त्राण्याश्रित्य प्रचाल्यमाने अत्र संगोष्ठ्याः समुद्घाटनं कृत्वा ते अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवन्तः। तदर्थं तेषां समक्षम् आदावेव अहम् आधमर्ण्यं विनिवेदयामि, महाविद्यालयस्य पक्षतः प्रबन्धनसमितेः पक्षतश्च। वस्तुतः तैः यत् इदानीं कथितं सनातन परंपरा इतर धार्मिक परंपरा लिटररी विषये यत् कथितं तत्तु अस्माकं कृते अग्रे इतः परं यदा एतादृश गोष्ठी अस्माभिः प्रचाल्यन्ते आयोजयिष्यति तस्मिन् समये एकैकं विषयम् आश्रित्य अस्माभिः अनन्तरं चर्चा वा संगोष्ठी वा आयोजयितुं शक्यते। तदर्थं एतद् अस्माकं कृते प्रकाशदायकम् आसीत् एतेषां भाषणं। भवान् इदानीं दिग्विजययात्रायाम् अस्ति, तस्मात् इदानीं वङ्गदेशं प्राप्तवान्, पुनः पूर्वोत्तरदेशगमनात् परं पुनरेकवारमपि आगच्छति चेत् दिनद्वयं वा दिनत्रयं वा अस्माकं महाविद्यालये उषित्वा अस्माकं छात्राणां कृते यत् भवतां विज्ञान भवत्सु यद् विद्यते विज्ञान पारावारः तत्र अस्माभिः प्रवेशं कर्तुम् अवसरः दीयताम् इति प्रार्थना अपि वर्तते। इत्युक्ते भवतां भाषणं श्रुत्वा इतः परं वस्तुतः एकं दिनं भवतां कृते दातव्यम् आसीत् इति चिन्तनम् आगतं मनसि। भवतु सर्वत्र स्पर्श एव कृतः, एकैकस्मिन्नपि विषये बहु वक्तव्यम् आसीत्, महान् आनन्दः जातः। किम मम एवं चिन्तनमस्ति, सर्वे जन्तवः सततम् उद्यमः प्रवृत्तिः किमर्थं सुखप्राप्त्यर्थं, सुखावाप्तये यदा प्रवृत्तिः भवति दुःखनिवृत्तिं विना दुःखं सुखं च युगपत् न भवति, एतद् परस्परविरुद्धं। तर्हि दुःखनिवृत्त्यर्थं कः उपायः? इदानीं शास्त्रज्ञाः सन्ति, इदानीन्तन सैन्टिस्ट् जनाः, तेषाम् ये उपायः ते कथितवन्तः। अस्माकं शास्त्रेषु अपि ये उपायाः ये पद्धतयः तत्र कल्पिताः तेषां विषये इदानीमपि सम्यक् विचारः न जातः। तदर्थम् अस्माकं परिश्रमः अत्र आरब्धः। तदर्थम् अस्माकं कृते महती कृपा प्रदर्शिता अस्माकं कुलपति महोदयः, आचार्य वर्खेडी महोदयः। यदा अस्माभिः एतादृश प्रस्तावः तत्र कृतः तैः सौमनस्येन अङ्गीकारः दत्तः। न केवलं एतत्, अग्रे भगवद्गीता विषये 7 दिनात्मक कार्यशालां कर्तुमपि ते अनुमतिं प्रदत्तवन्तः। तस्मात् अस्मिन् अवसरे अस्माकं वर्खेडी महोदयस्य मान्य कुलपति महोदयेभ्यः अपि अहम् आधमर्ण्यं विनिवेदयामि। पुनश्च अत्र अस्माकं प्राचार्याः सन्ति, ते प्राशासनिककर्मणि एवं शैक्षणिककर्मणि च प्रवीणाः सन्ति। वस्तुतः मासचतुष्टयात् पूर्वं यदा प्रथमवारं तत्र आगमनं जातं तस्मिन् समये महाविद्यालयस्य ईषत् परिवर्तनं सर्वं करणीयम् इति मया तत्र सूचितमासीत्। क्षणाभ्यन्तरे इदानीं तत्र वास्तुविद्याविषये विजयकुमार महोदय द्वारा उक्तम्, एतद् अद्भुतं प्रदर्शितम्। इदानीं तु एकमासाभ्यन्तरे एतादृश सभाभवनस्य तत्र निर्माणं कारितं वर्तते। तस्मात् अस्माकं प्राचार्यः न केवलं प्राशासनिककर्मणि अत्र शैक्षणिककर्मणि अपि अत्यन्तं कुशलाः सन्ति। तेषां नेतृत्वे महाविद्यालयस्य अग्रेपि प्रगतिः भविष्यति। पुनः अत्रत्याः अध्यापकाः इदानीं
तत्र सुधाकरमिश्रमहोदयाः अन्ये ये संयोजकरूपेण अत्र ये वर्तन्ते ते सर्वे समर्थाः सन्ति। न केवलं तेषां शास्त्रे किन्तु कर्मणि प्रायोगिकविषयेपि ते सर्वे समर्थाः। सर्वेषां कृते अहम् इदानीम् आत्मरण्यं विनिवेदयामि। इत्युक्ते मम अध्यक्षत्वे किमपि कार्यं कर्तुं ते इदानीं अहोरात्रं यतवन्तः प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्ति। तस्मात् सर्वेषाम् अहं पौनपुन्येन आत्मरण्यम् उक्त्वा वस्तुतः अध्यक्षभाषणे क्रोडीकृत्य सर्वं वक्तव्यमासीत्। दूरे स्थित्वा किं बहु कथनीयमासीत्। इत्युक्ते ममापि रुचिः आगतः। दिनत्रयात् पूर्वम् इदानीं किञ्चित् औषधं स्वीकृत्य अहम् अत्र किञ्चित् शग्वरेण उक्तं रस्येव दिनत्रयं दिनचतुष्टयम् आवश्यकं किञ्चित् अस्वास्थ्यकारणतः इति। किन्तु विजयकुमार महोदयस्य तत्र भाषणं श्रुत्वा इदानीं रोगः कुत्र गतः इति अहं न जानामि। तस्मात् केवलं एतेषां भाषणम् औषधरूपेणापि प्रवर्तते इति अहं विश्वसिमि। पुनश्च अत्र विभिन्नः प्रान्तेभ्यः ये तत्र विश्वज्वालपुटेन ऑनलाइन माध्यमेन ये आगताः सर्वेषां कृते स्वागतम् अहं वच्मि। पुनरेकवारं सर्वेभ्यः हार्दिकान् तत्र स्वागतान् कार्यक्रमस्य इदानीम् अग्रे प्रचाल्यमान इदानीं दिनद्वयात्मिक संगोष्ठ्यां स्वागतमहं करोमि। पुनश्च एकवारमपि विजयकुमार महोदयस्य ते तु वस्तुतः ह्यः रात्रौ इदानीमेव तत्र प्राचार्यद्वारा कथितमस्ति रात्रौ 2:00 यावत् एते प्राप्तवन्तः कोलकाता। पुनः अत्र तेषां वासस्थानं प्राप्य पुनः तत्र किञ्चित् समयम् उषित्वा निद्रां कृत्वा पुनः प्रातरेव आगत्य अस्माकं कृते ये भाषणम् इत्युक्ते उद्घाटन भाषणं कृतवन्तः तेभ्यः पुनरेकवारमपि अहम् आत्मरण्यं कार्तज्ञं विनिवेद्य विरमामि। सर्वेभ्यः प्रणामाः। सूचयतु कथयतु महोदय। इदानीं शृणोमि शृणोमि। आचार्यश्रीमन्ये आशीर्वादः सम्पन्नः हो गया। मध्ये 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 किं जातं न श्रुतं वा? हाँ, मध्ये तत्र नेटवर्क समस्या आसीत् तदर्थम् एवं जातम्। अस्तु अस्तु मया एतदेव कथितमस्ति। अस्माकं सौभाग्यमस्ति एते अत्र समागताः। पुनश्च अत्र अस्माकं कृते सौविध्यं कल्पितवन्तः अस्माकं कुलपति महोदयाः। एवं तत्र आदर्शविभागस्य ये निदेशकाः सन्ति मुरलीकृष्ण महोदयः तेषां सर्वेषां कृते अस्मिन् क्षणे अस्मिन् समये अहम् अस्माकं कृतज्ञतां काथम् आत्मरण्यं विनिवेदयामि। विजयकुमार महोदयस्य पार्श्वे इदं निवेदनमस्ति। पुनरेकवारं ते तु पूर्वः केरलीय इदानीं केरलीय इति न वदामि। भवतां तत्र हिंदी भाषा है, आपका जो हिंदी में जो भाषण सुना है आप बिल्कुल केरली नहीं है। बिल्कुल केरल नहीं है आप तो। अभी आपका जो पूरा भारत में जो दिग्विजय यात्रा चल रहा है, दिग्विजय यात्रा जो पूर्वोत्तर देश में खत्म करके आप दोबारा आ जाइए हमारा जो वंक देश में।
जो हमारा महाविद्यालय में आप 2 दिन हमारा छात्र के लिए, हमारा अध्यापक लोगों के लिए आपका जो विशिष्ट भाषण हमको दीजिए, क्योंकि आपका जो आप जब आपका जो विषय में आप प्रवेश ही किया है, आपका मिनिमम 1 हफ्ता चाहिए। जो आपका जो जितना संपत्ति है, वैज्ञानिक संपत्ति है, वो हमको मिलने के लिए मिनिमम 1 हफ्ता चाहिए। ये तो एक वाइस चांसलर को इतना टाइम नहीं मिलेगा, फिर भी आपके समक्ष निवेदन है, कम से कम जो दिग्विजय विजय यात्रा का जो वापस जब आ जाएंगे उस टाइम दोबारा एक बार और आ जाइए। आपका जो भाषण से, आगमन से हम सब धन्य धन्य है। इसलिए महाविद्यालय को ओर से, जो प्रबंधन समिति के ओर से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारा जो प्राचार्य के बारे में जो बोला है, सुना है कि पता नहीं है। देखिए विजय कुमार जी, हमारा जो कुलपति जी ने, वारखेड़ी जी ने, तो हम ये निवेदन किया है, हमारा महाविद्यालय है, छोटा महाविद्यालय है, वहां इतना सुविधा नहीं है और एक हमारे लिए एक सभागृह चाहिए। तुरंत उन्होंने अनुमति दे दिया, आपको अब जो जितना पैसा चाहिए लीजिए, जल्दी काम शुरू करिए। ये आदेश हमको मिला है तुरंत। हमारा जो प्राचार्य जी को मैंने कहा आप कर सकते तो जो हमारा जो संगोष्ठी है 2 दिन का कार्यक्रम से पहले ये काम खत्म कर दीजिए। देखिए 3 हफ्ते के अंदर इतना सुंदर सभा भवन उन्होंने बनाया है। इसलिए हमारा जो प्राचार्य है, जो प्रशासनिक भी है, जो शैक्षणिक इनका जो शास्त्र में भी इतना विद्वान है, ऐसा एक प्राचार्य हमको मिला है, हमारा जो सौभाग्य है। और हमारा साहू जी है, साहू जी मुझे याद है, मैं जब रजिस्ट्रार पोस्ट में काम किया था, हमारा जो प्रबंधन समिति का जो विशेषज्ञ थे, सदस्य थे, बार बार हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम के लिए आ जाते हैं, हमको हमारा जो छात्र के लिए ये अनुग्रह भाषण देते हैं। हमको उन्होंने बहुत सारे, जो जब केरल में था 2-3 बार उनके पास हम गया था, उनका जो कार्यकाल में हमारा गुरुवायूर परिसर को भी बहुत प्रगति देखा है। इसलिए साहू जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और विजय कुमार जी, आप देखा होगा हमारा जो अध्यापक वृंद है, वहां इतना जो प्रकांड पंडित लोग है, विदुषां सम्मेलनं भवद्भिः तत्र अवलोकयितुं शक्यते। यदि उपनिषत् गच्छति चेत् तत्र एकः प्रश्नः आगच्छति, किमर्थम् एतादृश गोष्ठिः अस्माभिः चाल्यते इति चर्चा एकत्र जायते। तत्र चर्चा अवसरे इदं तत्र निष्कर्षः अस्ति, विद्या प्राप्त्यर्थं विदुषां समुदायः करणीयः। अस्माकं सौभाग्यवशात् अस्माकं महाविद्यालये न्यायशास्त्रे, व्याकरणशास्त्रे, साहित्यशास्त्रे, व्याकरणे च मूर्धन्यपण्डिताः विराजन्ते। तत् किन्तु तेषां सन्निधौ प्राप्य अस्माकं छात्राः साफल्यम् अनुभूयन्ते वा इति चिन्तनमस्ति एकं। द्वितीयं तु अस्माकं महाविद्यालयस्य कृते recently our university has chosen only one Adarsh Mahavidyalaya to start research program, that is Sri Sitaram Vaidik Adarsh Mahavidyalaya, because our teachers are so competent to guide our students for their research activities. For sanctioning research program in our Adarsh Mahavidyalaya, I take this opportunity to give our gratitude towards the authorities, especially our Honorable Vice Chancellor Professor Srinivas Varkhedi ji. Again, I conclude here my presidential address. I again request Professor Vijay Kumar ji, bhavatam nikate समक्षं पुनरपि निवेदनमस्ति, पुनरेकवारमपि आगच्छन्तु, अस्माकं छात्राणां कृते महदुपकाराय भवति इत्युक्त्वा सर्वेषां नमस्कारं कृत्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। अध्यक्ष पादानां आद्य विषयम् उत्साहपूर्णं च वचनं श्रावं वयं धन्याम्। इदानीं तत्र कालः तीव्रवेगेन अतिक्रामति। तर्हि जगन्नाथपुरी धामतः प्राप्ताः विद्वांसः प्रोफेसर शाहू महाभागाः, तेषां चरणकमलयोः निवेदनं निमिषद्वये स्वकीयम् आशीर्वचनम् अस्मभ्यं यच्छन्तु इति।
सभै नमः। अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थिताः अस्य परिसरस्य प्रबन्धसमितेः आचार्याः गुरवः सुब्रह्मण्यं महोदयाः, अस्य परिसरस्य महाविद्यालयस्य प्रांशुपालः सौमेश मिश्रमहोदयाः, समागताः आचार्याः विद्वांसः, पाणिनि विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः विजयकुमार महोदयाः, अस्य सञ्चालकाः सुब्रह्मण्यमहोदयाः, सम्मुखस्थाः सहकर्मिणः, बान्धवः छात्रः छात्रश्च। अयं यः कार्यक्रमः इदानीं सञ्चाल्यते, तस्मिन् कार्यक्रमे यैः यत् भाषितं तद् यदि अस्माभिः अस्माकं जीवनपथे किमपि व्यवह्रियते तर्हि अस्माकं जीवनं सफलं भवेत्। किञ्च अस्माकं यः समाजः सः समाजः अपि उपकृतः स्यात्। अयं यः विषयः प्रदत्तः अतीव शिक्षणीयः। अयं विषयः शास्त्राणां जीवन्तपरम्परा ज्ञानं विज्ञानं च। शास्त्रम् इत्युक्ते अस्माभिः ज्ञायते यत् शासति अस्मान्, तत् शास्त्रम्। तेषां भूतानां शास्त्राणां जीवन्तपरम्परा, परम्परं रीयते गच्छति जासा परम्परा अस्माकम् इयं वैदिकपरम्परातः सृष्टा। इयं च परम्परा, भारतीयपरम्परा, प्रथमपरम्परा विश्वधारा इति अस्माभिः उच्यते। तस्माद् मनुना उक्तमस्ति, देशप्रसुप्तस्य सकाशदग्धजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं सख्येरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः वयं तस्मिन् भारतवर्षे वसामः यस्मात् पृथिव्याः जनाः अस्माकं सभ्यतां ज्ञातुं प्रभवन्ति। तत्रैव तत् ज्ञानं, तत्रैव तत् विज्ञानं तत् अस्माभिः ध्येयम्। किं नाम ज्ञानम् इत्युक्ते धर्मशास्त्रपक्षतः वक्तुं शक्यते, अस्माकं यत् पूर्वजन्म तस्मिन् जन्मे अस्माभिः यत् कर्म कृतं तत् कर्म अनुरूपं यत् सहजम् आगतं तदेव अस्माकं ज्ञानम् इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते, येन कैवल्यम् अस्माभिः लब्धुं शक्यते इति वैदान्तिकाः वदन्ति। विज्ञानम् इत्युक्ते विशेषेण ज्ञानं नाम तद् इतरज्ञानं शिल्पज्ञानादयः वक्तुं शक्यन्ते। तर्हि यत् विज्ञानं भवति, ज्ञानं भवति अस्माकं परम्परायाः, तया यदि वयं सम्मुखाः भवामः तर्हि अस्माकं समुन्नतिः स्यात्। भारतवर्षम् इदं पूर्वमिव सुवर्णभारतवर्षं भवेत् इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। नाधिकं वक्तव्यं, समयः बहु मूल्यवान् भवति। गुरवः तत्र सन्नद्धाः सन्ति, समयस्तु इङ्गितं करोति मास्तु अधिकम्, अतः एतावता विरम्यते। इदानीं तत्र अस्य उद्घाटनसत्रस्य धन्यवादज्ञापनार्थम् आकारयामि। अस्माकं महाविद्यालयस्य अध्यापिका, शङ्करगणक अध्यापिका श्रीमती जयश्री भट्टाचार्या समुपस्थिता अस्ति। सा गच्छेत् अतीव संक्षेपेण। धन्यवादः। A very good afternoon to all of you. It's really an honor to be a part of such a wonderful inaugural session. On behalf of this Mahavidyalaya, I would like to extend my heartfelt gratitude to our respected Vice Chancellor Sir, our respected Chairman Sir, our esteemed guest, Professor Vijay Kumar Sreji Sir, Professor Lalit Kumar Shahu Sir, and all the delegates who are connected with us through online mode, and our respected Principal Sir, Dr. Shomesh Kumar Mishra. We are really spellbound to hear all of you, sir. It's really an honor. And we, as a layman, often hear the term Gyan and Vigyan alternatively. But are they synonyms?
Are Gyan and Vigyan the same thing? When the Vedic literature states that Vigyan means cosmic science and Gyan states the self-consciousness that you need to have to understand this cosmic science. By the end of this 2-day national seminar, we hope to achieve a higher knowledge of this particular topic and to extend its benefit to the society at large. Having said that, I will extend my sincere thanks to Central Sanskrit University for their support. And last but not least, a wide round of applause and sincere thanks to Dr. Sudhakar Mishra, the coordinator of this national seminar, all the teaching, non-teaching staff and students of this Mahavidyalaya for their wonderful participation. Thank you. धन्यवादः। इदानीम् एतत् उद्घाटनसत्रमत्रैव पूर्यते।